ਹੈਲੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਗਿਲਜ਼ ਮੈਂਟੋਰ ਈ ਲਰਨਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ 8 ਦਸੰਬਰ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਰੈਡੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਸੈਸ਼ਨ ਜੋ ਕਿ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋਏਗਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਗਜ਼ਾਮਸ, ਪੰਜਾਬ ਪਟਵਾਰੀ, ਪੀਪੀਐਸਸੀ, ਪੀਸੀਐਸ, ਐਸਐਸਸੀ, ਸੀਜੀਐਲ, ਸੀਐਚਐਸਐਲ ਔਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਸੈਸ਼ਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵਟਸਐਪ, ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ, ਫੇਸਬੁੱਕ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ। IBPS, RRB, JEE पंजाब, पंजाब पुलिस, SI और पटवारी ਦੇ ਲਈ ਬੈਚਿਸ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨਰੋਲ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਨਰੋਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਿੰਪਲੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੈਬਸਾਈਟ ਦਾ ਲਿੰਕ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਕੋਰਸ ਜਾਂ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅਵੇਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਓ। ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਐਂਡ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਸੈਸ਼ਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਆਪਾਂ MCQ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲਾਂਗੇ ਅੱਜ ਦੀ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ MCQ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਸਟੈਟਿਕ ਫੈਕਟਸ ਔਰ ਪੁਰਾਣੀ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਟਰਲਿੰਕ ਕਰਦੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਰਲਡ ਸੋਇਲ ਡੇ ਤੋਂ। ਵਰਲਡ ਸੋਇਲ ਡੇ 5 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 5 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਸੋਇਲ ਡੇ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇसी ਦੇ ਨਾਲ FAO ਕੈਂਪੇਨ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫੂਡ ਐਂਡ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, FAO ਫੂਡ ਐਂਡ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਕੈਂਪੇਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇसी ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਕੀ ਕੈਂਪੇਨ ਹੈ? ਕੀਪ ਸੋਇਲ ਅਲਾਈਵ, ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਸੋਇਲ ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ। ਕੀਪ ਸੋਇਲ ਅਲਾਈਵ, ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਸੋਇਲ ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇसी ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ FAO ਦੁਆਰਾ, ਉਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਡੇ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਡੇ ਵੀ 5 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਥੀਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਟੂਗੈਦਰ ਵੀ ਕੈਨ ਥਰੂ ਵੋਲੰਟਰਿੰਗ। ਟੂਗੈਦਰ ਵੀ ਕੈਨ ਥਰੂ ਵੋਲੰਟਰਿੰਗ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ RBI ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। RBI ਦੁਆਰਾ ਕੰਟੈਕਟਲੈਸ ਕਾਰਡ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਲਿਮਿਟ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 2000 ਤੋਂ 5000 ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 2000 ਤੋਂ 5000 ਰੁਪੀਜ਼ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕੰਟੈਕਟਲੈਸ ਕਾਰਡ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਦੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸ਼ਿਵਥੰਨੂ ਪਿੱਲਈ। ਸ਼ਿਵਥੰਨੂ ਪਿੱਲਈ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ ਗਈ 40 ਈਅਰਸ ਵਿਦ ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ। 40 ਈਅਰਸ ਵਿਦ ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਅਨਟੋਲਡ ਸਟੋਰੀਜ਼। ਇਸ ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ M ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਦੁਆਰਾ। ਬੁੱਕ ਦੇ ਆਥਰ ਦਾ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਿੰਨਾ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ADB ਏਸ਼ੀਅਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ 190 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਲੋਨ 190 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਲੋਨ ਅਪਰੂਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਟੂ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਪਾਵਰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਇਨ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਕਰਨਾਟਕਾ। ਟੂ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਪਾਵਰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਇਨ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਕਰਨਾਟਕਾ। ਬਾਈ ਮੰਥਲੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ RBI ਮੋਨੀਟਰੀ ਪੋਲਿਸੀ ਦੀ, ਤਾਂ RBI ਵੱਲੋਂ ਮੋਨੀਟਰੀ ਪੋਲਿਸੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਾਈ ਮੰਥਲੀ ਪੋਲਿਸੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਰ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਰਿਵਿਊ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ CRR ਹੈ, CRR 3% ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ। RR ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੈਪੋ ਰੇਟ 4% ਹੈ। ਰਿਵਰਸ ਰੈਪੋ ਰੇਟ 3.35% ਹੈ। ਬੈਂਕ ਰੇਟ ਔਰ ਮਾਰਜਨਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਰੇਟ BR ਔਰ MSF ਦੋਨੋਂ ਕਿੰਨੇ ਨੇ 4.25% ਔਰ SLR ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 18% ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ IISc ਬੈਂਗਲੁਰੂ। IISc ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਸਾਇੰਸ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਔਰ ਰੋਬੋਟਿਕਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਪਾਰਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਰੋਬੋਟਿਕਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਪਾਰਕ, ਤਾਂ ਕਿ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫੀਲਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ, ਹੈਲਥ ਸੈਕਟਰ, ਐਨਰਜੀ ਸੈਕਟਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ICICI ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਆਫਿਸ ਓਪਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨੇਪਾਲ ਕਾਠਮਾਂਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ICICI ਬੈਂਕ ਇੰਡੀਅਨ ਬੈਂਕ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਆਫਿਸ ਕਿੱਥੇ ਓਪਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਕਾਠਮਾਂਡੂ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਕਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਐਂਬੈਸਡਰ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੌਰਲਿਕਸ ਦੇ। ਹੌਰਲਿਕਸ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਪਲੱਸ ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਐਂਬੈਸਡਰ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਅਕਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ। ਫਿਨਟੈਕ ਸਟਾਰਟਅਪ ਪੇ ਨੀਅਰ ਬਾਈ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਕੀਤੀ ਯੈਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ NPCI ਦੇ ਨਾਲ। ਫਿਨਟੈਕ ਦੁਆਰਾ
सॉरी फिनटेक का एक स्टार्टअप है पे नियर बाय द्वारा यस बैंक और NPCI ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਸ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਕਾਰਡ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ पे नियर बाय शॉपिंग कार्ड ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। NPCI ਦੇ ਫੈਕਟਰਸ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਨੇ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹਿਣਗੇ। 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈ ਔਰ ਦਿਲੀਪ ਆਸਵੇ ਇਸ ਦੇ ਹੈੱਡ ਨੇ। ਜੌਨ ਐਬਰਾਹਿਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਸਨ ਆਫ ਦਾ ਈਅਰ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪੈਟਾ ਦੁਆਰਾ। ਪੈਟਾ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਪੀਪਲ ਫॉर ਐਥੀਕਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਆਫ ਐਨੀਮਲਸ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੈਟਾ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਵਰਜੀਨੀਆ USA ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੋਰ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਅਯਾਨ ਬੈਨਰਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹੇਗਾ। ਪੈਟਾ ਇੰਡੀਆ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਦੇ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ 2020 ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਆਫ ਦਾ ਈਅਰ ਨਾਮਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 2020 ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਆਫ ਦਾ ਈਅਰ। USA ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਬਿਡਨ ਦੁਆਰਾ ਡਾਕਟਰ ਵਿਵੇਕ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਸਰਜਨ ਜਨਰਲ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਟਰਮ ਦੇ ਲਈ। ਸਰਜਨ ਜਨਰਲ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? USA ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਵਿਵੇਕ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਿਸਾਲੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਟੀਚਰ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸੋਲਾਪੁਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ $1 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਗਲੋਬਲ ਟੀਚਰਸ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ 2020 ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਸਾਲੇ। ਵਾਰਕੇ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰਲਜ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਔਰ QR ਕੋਡ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਐਸੇ ਪਰਸਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ $1 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਸੀਗਾ, ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮਨੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਤਾ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫਸਟ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕੌਣ ਹੈ, ਸੈਕਿੰਡ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕੌਣ ਹੈ, ਥਰਡ ਨੰਬਰ 'ਤੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਫਸਟ 10 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ 9 ਬੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮਨੀ ਹੈ ਉਹ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਸੈਨ ਇਬਰਾਹਿਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਸੈਕਟਰੀ ਜਨਰਲ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ OIC ਦਾ, ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇਸਲਾਮਿਕ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਸੈਕਟਰੀ ਜਨਰਲ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਹੁਸੈਨ ਇਬਰਾਹਿਮ ਨੂੰ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ M ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਪੋਸਟੇਜ ਸਟੈਂਪ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਨ ਦਾ ਆਨਰ ਆਫ ਲੇਟ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ I.K. ਗੁਜਰਾਲ। ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨਵੇਂ ਨੰਬਰ ਦੇ I.K. ਗੁਜਰਾਲ ਕਿੰਨਵੇਂ ਨੰਬਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਉਦੇ ਸ਼ੰਕਰ ਦਾ ਨਾਮ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਣੇਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿੱਕੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਫਿੱਕੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਚੈਂਬਰਸ ਆਫ ਕਮਰਸ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼, ਸੰਗੀਤਾ ਰੈਡੀ ਇਸ ਦੇ ਹੈੱਡ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਦੇ ਸ਼ੰਕਰ ਨੂੰ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। 1927 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈ। ਟੈਸਲਾ ਦੇ CEO ਐਲਨ ਮਸਕ ਦੁਆਰਾ ਫੋਰਚੂਨ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਰਸਨ ਆਫ ਦਾ ਈਅਰ ਲਿਸਟ ਨੂੰ ਟੌਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ। ਐਲਨ ਮਸਕ ਟੈਸਲਾ ਦੇ CEO ਨੇ, ਇਸੀ ਦੇ ਨਾਲ SpaceX ਦੇ ਵੀ CEO ਨੇ। ਇਸੀ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਇੰਡੀਅਨ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਅਡੋਬ ਦੇ CEO ਸ਼ਾਂਤਨੂ ਨਾਰਾਇਣ ਔਰ ਮਾਸਟਰਕਾਰਡ ਦੇ CEO ਅਜੇ ਬੰਗਾ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਇਸ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 8ਵੇਂ ਔਰ 9ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਮਾਸਟਰਕਾਰਡ ਦੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, CEO ਨਵੇਂ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਅੱਜ ਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ 2020 ਫੋਰਚੂਨ 500 ਲਿਸਟ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨੂੰ ਟੌਪ ਕੀਤਾ ਹੈ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੁਆਰਾ। ਸੈਕਿੰਡ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਰਹੀ ਸੀ, ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਮਹਿੰਦਰ ਨਾਥ ਪਾਂਡੇ ਲਵੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੁਨਰ ਹਾਟ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਮਪੁਰ ਔਰ ਸ਼ਿਲਪਗ੍ਰਾਮ ਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, UP ਦੀ ਰਾਮਪੁਰ ਔਰ ਸ਼ਿਲਪਗ੍ਰਾਮ ਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੁਆਰਾ IIT 2020 ਵਰਚੁਅਲ ਸਮਿਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। IIT 2020 ਵਰਚੁਅਲ ਸਮਿਟ ਜਿਸ ਦੀ ਥੀਮ ਰਹੀ ਹੈ ਫਿਊਚਰ ਇਜ਼ ਨਾਓ, ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੈਨ IIT USA ਦੁਆਰਾ। ਇਸ ਸਮਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ IIT ਐਲਮਨੀ ਕਾਉਂਸਲ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਫੰਡ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹੇਗਾ, ਇੰਡੀਆ ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ ਫੰਡ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਡਰ 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਣੀ ਹੈ ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। 7th ਮੀਟਿੰਗ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਔਰ ਮੰਗੋਲੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਮੰਗੋਲੀਆ ਦੇ ਨਾਲ 7th ਜੁਆਇੰਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੀਟਿੰਗ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ।
इंडिया वालों एस जयशंकर सुब्रमण्यम जयशंकर द्वारा पार्टिसिपेट किया गया और इसी के अंडर आयुष इन्फॉर्मेशन सैल अनाउंस किया गया कि एक आयुष इन्फॉर्मेशन सैल लगाया जाएगा। कित्थे लगाया जाएगा? मंगोलिया की कैपिटल उलन बातूर दे विच। मंगोलिया की कैपिटल की है? उलन बातूर है। नैक्सट है इंडिया द्वारा पैसेज एक्सरसाइज कंडक्ट की गई रशिया के नाल। रशिया के नाल इंडियन ओशन के विच पैसेज एक्सरसाइज नूं कंडक्ट किया गया। बहरेन, बहरेन की गल करते हैं, दूसरी ऐसी कंट्री बनी है यूके तो बाद जिसने फिजर बायोटेक वैक्सीन नूं अप्रूवल दी है। ठीक है, क्वेश्चन ज़्यादातर पहली कंट्री बारे पूछा जाएगा। यूके केड़ी कंट्री ऐसी जिसने फिजर बायोटेक वैक्सीन नूं अप्रूवल दी? यूके ने। ठीक है जी। इसी तरीके नाल पहली कंट्री जिसने क्लाइमेट एमरजेंसी डिक्लेयर की वो भी केड़ी है? यूके है। ठीक है जी, याद रखांगे। नौ दुराई, दो मूवीज़ ने, नौ दुराई और फागुन हावे। नौ दुराई और फागुन हावे बांग्लादेशी मूवीज़, इन्होंने नैशनल फिल्म अवार्ड्स 2019 के विच अवार्ड दिते। ठीक है जी। इसी के नाल बेस्ट फिल्म का अवार्ड इन्हों द्वारा दिता गया और बेस्ट डायरैक्टर का अवार्ड नौ दुराई मूवी के लिए तनीम रहमान अंशु द्वारा इस अवार्ड को जितया गया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की गल करते हैं तो इन्हों द्वारा फाउंडेशन स्टोन रखा गया एक एनर्जी पार्क का। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा अज के दिन भी एक फाउंडेशन स्टोन रखा जाएगा, उसके बारे भी डिस्कस कर अज के दिन नहीं, कल रखा गया, कल मंडे से कल रखा गया फाउंडेशन स्टोन, उन्होंने बारे भी डिस्कस करांगे। इस तो इलावा एक फाउंडेशन स्टोन 10 तरीक को रखा जाएगा, एक 15 तरीक को रखा जाएगा, उन्होंने बारे भी डिस्कस करांगे। तो एक एनर्जी पार्क का फाउंडेशन स्टोन 15 दिसंबर को रखा जाएगा कच्छ डिस्ट्रिक्ट गुजरात के। 15 के बारे इत्थे डिस्कस कर लें कि 15 तरीक को 15 दिसंबर को कच्छ डिस्ट्रिक्ट के एनर्जी पार्क का फाउंडेशन स्टोन कौन रखणगे? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रखणगे। 30,000 मैगावाट का यह प्लांट होएगा और वर्ल्ड का बिगेस्ट एनर्जी पार्क बनेगा। नैक्सट है लक्षद्वीप के एडमिनिस्ट्रेटर की गल करते हैं, दिनेश्वर शर्मा होंगे सी, इन्हों की रिसेंटली डेथ हो गई है। डॉक्टर नरिंदर कपानी ये फाइबर ऑप्टिक्स के फादर मने जाते सी, फाइबर ऑप्टिक्स डेवलप की गई सी इन्हों द्वारा, इन्हों की भी रिसेंटली डेथ हो गई। तेलंगाना की गल करते हैं, इन्हों द्वारा एंटी करप्शन वीक ऑब्जर्व किया गया 3 तो लैके 9 दिसंबर तक। हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट द्वारा CISF के नाल मिलकर स्वर्णिंग सेवा नाम की सर्विस नूं शुरू किया गया। इस तो इलावा वैस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी द्वारा टैबलेट्स अनाउंस किए गए हैं। 9.5 लाख स्टूडेंट्स नूं टैबलेट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। सैकेंड कैंपस ऑफ राजीव गांधी सेंटर फॉर बायोटैक्नोलॉजी, राजीव गांधी सेंटर फॉर बायोटैक्नोलॉजी है जिहड़ा ये कित्थे है? केरला दे विच है। इसका सैकेंड कैंपस बनाया जा रहा है किन्ना दे नाम ते? MS गोलवारकर के नाम ते, श्री गुरु माधव सदाशिव गोलवारकर, इन्हों के नाम से कैंपस बनाया जा रहा है। 31 कोणार्क डांस फैसटीवल कित्थे शुरू होया? उड़ीसा दे विच। सैंड आर्ट फैसटीवल कित्थे शुरू होया? उड़ीसा के पुरी डिस्ट्रिक्ट दे विच, ये भी याद रखना। नैक्सट है अ न्यू कैंपस ऑफ नैशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोपैथी, नैशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोपैथी पुणे का एक नवा कैंपस बनाया जा रहा है जिसका नाम रखा जाएगा निसर्ग ग्राम। ठीक है जी। नैक्सट चलते हैं स्टैटिक पोर्शन के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिस्कस कर रहे हैं। तो बर्ड सेंचुरी मयानी बर्ड सेंचुरी कितने है? महाराष्ट्र के। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रिलेटेड महाराष्ट्र रिलेटेड न्यूज़ है डिस्कस करांगे। गुजरात नल सरोवर बर्ड सेंचुरी और थोल बर्ड सेंचुरी, नल सरोवर बर्ड सेंचुरी, थोल बर्ड सेंचुरी। कन्वर लेक बर्ड सेंचुरी और विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी बिहार दे विच। कर्नाटका रंगनथीतू बर्ड सेंचुरी कर्नाटका दे विच। कोलेरू बर्ड सेंचुरी और नेलापट्टू बर्ड सेंचुरी आंध्र प्रदेश दे विच। कोलेरू बर्ड सेंचुरी, नेलापट्टू बर्ड सेंचुरी कित्थे है? आंध्र प्रदेश दे विच। नैक्सट चलते हैं अज के फर्स्ट क्वेश्चन के वाल। फर्स्ट न्यूज़ डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे। इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे 7 दिसंबर यानी कि कल के दिन ऑब्जर्व किया गया इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे। अगर आप गल करते हैं इसकी थीम की तो इसकी थीम रही है वह भी इंपोर्टेंट रहेगी, डिस्कस करते हैं। इस तो इलावा कल के दिन ही एक होर इंपोर्टेंट डे भी ऑब्जर्व किया गया, उसके बारे भी डिस्कस करते हैं। सब तो पहले इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे 7 दिसंबर को ऑब्जर्व किया गया जिसकी थीम रही एडवांसिंग इनोवेशन फॉर ग्लोबल एविएशन डिपार्टमेंट, एडवांसिंग
ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਫॉर ਗਲੋਬਲ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਇਸ ਥੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਵਲ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਡੇ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡੇ 7 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹਰ ਸਾਲ, ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਸ ਫਲੈਗ ਡੇ। ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਸ ਫਲੈਗ ਡੇ, ਇਸ ਦਿਨ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਿਵੀਲੀਅਨਸ ਨੂੰ, ਨੋਰਮਲ ਲੋਕ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹੋ ਗਏ, ਫਲੈਗਸ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ, ਔਰ ਫਲੈਗਸ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਅਮਾਊਂਟ ਨੂੰ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਸ ਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਦਿਨ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਸ ਫਲੈਗ ਡੇ ਹਰ ਸਾਲ 7 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਮਹਾਪਰਿਨਿਰਵਾਣ ਦਿਵਸ। ਮਹਾਪਰਿਨਿਰਵਾਣ ਦਿਵਸ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹਰ ਸਾਲ 6 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਐਜ਼ ਏ ਡੈਥ ਐਨੀਵਰਸਰੀ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਦੀ ਡੈਥ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਦੀ ਡੈਥ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਫੋਰਥ ਆਪਸ਼ਨ ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ। ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 1956 ਦੀ 64th ਡੈਥ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਨੂੰ यानी कि 1956 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ 64th ਮਹਾਪਰਿਨਿਰਵਾਣ ਦਿਵਸ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹੇਗਾ। 1990 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 1990 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹੇਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 64th ਡੈਥ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਹਾਪਰਿਨਿਰਵਾਣ ਦਿਵਸ ਕਾफ़ी ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਨਾਮ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਦਰ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ठीक है, और पहले SC कैटेगरी के कह सकते हैं, सॉरी BC कैटेगरी कहेंगे कि पहले बैकवर्ड क्लास के लॉ स्टूडेंट बने सीगे बाला साहेब अंबेडकर, जिन्होंने अपनी लॉ पूरी की सी। ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन के जी ड्राफ्टिंग कमेटी सी, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने की ड्राफ्टिंग कमेटी के हैड भी कौन सीगे? BR अंबेडकर, डॉक्टर BR अंबेडकर या बाला साहेब के टाइटल के नाल इन्हों नामित किया जाता है बाला साहेब अंबेडकर। ठीक है जी, याद रखनी है। नेक्स्ट है बैंक्स बोर्ड ब्यूरो। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा भी कि बैंक्स बोर्ड ब्यूरो द्वारा चेयरमैन और MD के लिए नॉमिनेट किया गया किन्हों का नाम? सिडबी के लिए। बेसिकली सिडबी है जी स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया BBB। बैंक्स बोर्ड ब्यूरो है जी, ये बेसिकली जिन्नी भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशनस ने इन्हों के लिए पोस्टां दे विच नॉमिनेट करता होंगे, रिकमेंड करता होंगे नाम। ज़्यादातर की कहिए कि वैसे 99.99% जिहड़ा नाम इन्हों द्वारा रिकमेंड किया जाता है उसे नूं ही अपॉइंट भी किया जाता है। तो सिडबी के लिए S रमन का नाम अपॉइंट किया गया, अनाउंस किया गया, रिकमेंड किया गया चेयरमैन के तौर पर स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। हैडकुआटर कित्थे है? लखनऊ दे विच। ये इंपॉर्टेंट बनेगा, लखनऊ दे विच इसदा हैडकुआटर है। बाकी नामां दे विचों सिद्धार्थ मोहंती का नाम याद रखांगे। सिद्धार्थ मोहंती का नाम भी बैंक बोर्ड ब्यूरो द्वारा LIC के MD CEO के लिए रिकमेंड किया गया सी। LIC के MD CEO के लिए रिकमेंड किया गया सी। माइकल मेबैक के बारे न्यूज़ है, डिस्कस करते हैं। शिवेंद्र तोमर के बारे भी डिस्कस करते हैं। अच्छा, राजीव जलोटा के बारे आप डिस्कस किया होया। राजीव जलोटा ने जोड़े मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के चेयरमैन अपॉइंट किए गए सी रिसेंटली। इन्हों के बारे आप डिस्कस किया, आई थिंक नवंबर के इन्हों के बारे आप डिस्कस किया। बाकी दो ऑप्शन के बारे डिस्कस कर लें। शिवेंद्र तोमर का नाम भी बैंक बोर्ड ब्यूरो द्वारा ही रिकमेंड किया गया है एज ए MD CEO ऑफ इंडस्ट्रीयल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया IFCI की गल करते हैं। मुंबई के हैडकुआटर है इंडस्ट्रीयल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। मुंबई के नहीं, न्यू दिल्ली के हैडकुआटर है। इंडस्ट्रीयल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का हैडकुआटर न्यू दिल्ली के है। और बैंक बोर्ड ब्यूरो द्वारा शिवेंद्र तोमर का नाम इसके MD CEO लिए नॉमिनेट किया गया। माइकल माइबैक जी अपने गल डिस्कस की थी। मास्टर कार्ड के CEO इस टाइम कौन ने? अजय बंगा 9वें नंबर पर रहे ने किस दे विच? फॉर्चून लिस्ट दे विच जिहड़ी कि जारी की गई है बिजनेसमैन ऑफ द ईयर दे विच। ठीक है जी, इसी दे नाल हुण मास्टर कार्ड दे विच नवे CEO अपॉइंट किए जा रहे हैं। माइकल मेबैक एक कदों ज्वाइन करनगे? 1 जनवरी 2021 तो। नैक्सट है
विच बैंक हैज़ लॉन्च ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, किहड़े बैंक द्वारा ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी शुरू की गई है? कृषि ओडी, ओडी का मतलब इत्थे ओवरड्राफ्ट है, तो कृषि ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी किहड़े बैंक द्वारा शुरू की गई? कृषि ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी शुरू की गई KVGB यानी कि कर्नाटका विलास ग्रामीण बैंक, कर्नाटका विलास ग्रामीण बैंक। जिन्ने भी इत्थे ऑप्शनस ने इन्हां दे हैडकुआटर्स इंपोर्टेंट बनते हैं क्योंकि ये बैंक सारे रिसेंटली न्यूज़ दे विच रह चुके हैं, तो सारे डिस्कस कर लेने आ। सब तो पहले KVGB कर्नाटका विलास ग्रामीण बैंक है जिहड़ा, इसका हैडकुआटर कित्थे है? धरवड़, धरवड़ कर्नाटका दे विच। कमेंट बॉक्स दे विच दसना धरवड़ कर्नाटका तो किहड़े लोक सभा MP ने, कमेंट बॉक्स दे विच किहड़े मिनिस्टर ने जिहड़े लोक सभा MP ने धरवड़ कर्नाटका तो। बैंक ऑफ बड़ौदा का हैडकुआटर वडोदरा गुजरात दे विच है। इंडियन बैंक की गल करते हैं, इंडियन बैंक का हैडकुआटर चेन्नई दे विच है। इंडियन बैंक का हैडकुआटर कित्थे है? चेन्नई दे विच। जन स्मॉल फाइनेंस बैंक, जन स्मॉल फाइनेंस बैंक का हैडकुआटर बेंगलुरु दे विच है। जन स्मॉल फाइनेंस बैंक का हैडकुआटर भी कर्नाटका दे बेंगलुरु दे विच है। और पंजाब नैशनल बैंक का हैडकुआटर न्यू दिल्ली दे विच है। पंजाब नैशनल बैंक का हैडकुआटर कित्थे है? न्यू दिल्ली दे विच। ठीक है जी, सारे बैंकों के हैडकुआटर इंपोर्टेंट बन गए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया हैज़ वॉन इंटरनेशनल किंग भूमि बॉय वर्ल्ड सॉइल डे अवार्ड, इंटरनेशनल किंग भूमि बॉय वर्ल्ड सॉइल डे अवार्ड गिवन बाय FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन फॉर रेजिंग अवेयरनेस अबाउट सॉइल हेल्थ। ठीक है, हमने आप डिस्कस करके हटे हैं FAO के बारे अगर आप गल करते हैं तो 16 अक्तूबर ਨੂੰ ਆਪਾਂ इसका फाउंडेशन डे भी डिस्कस किया 1945 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। 75 साल रिसेंटली पूरे हुए ने 16 अक्तूबर ਨੂੰ। और इसी के लिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा एक कमैमोरेटिव कॉइन भी रिलीज़ किया गया सी। 75 रुपीज़ का कमैमोरेटिव कॉइन रिलीज़ किया गया। दूसरी गल FAO के हैडकुआटर रोम इटली के विच है और क्यू डोंगियू इस दे हैड ने। ठीक है जी, हुण FAO द्वारा वर्ल्ड सॉइल डे ऑबजर्व किया गया, कितनी तरीक को ऑबजर्व किया गया? इंपोर्टेंट रहेगा 5 दिसंबर को हर साल ऑबजर्व किया जाता है। अवार्ड दिता गया इंटरनेशनल किंग भूमि बॉय वर्ल्ड सॉइल डे अवार्ड, ये किन्ना ने जितया? इंडियन ऑर्गेनाइजेशन ने। केड़ी इंडियन ऑर्गेनाइजेशन ने? ICAR ने, इंडियन काउंसल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। इंडियन काउंसल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है जी, इसकी फुल फॉर्म है। हैडकुआटर कित्थे है? न्यू दिल्ली दे विच। हैडकुआटर न्यू दिल्ली दे विच है। बेसिकली इसनूं बनाया गया सी 1929 दे विच, 1929 दे विच। और इसके जिहड़े डायरैक्टर ने, डायरैक्टर का नाम है तरलोक चंद्र इस दे डायरैक्टर ने। अगर आप इस ऑर्गेनाइजेशन के प्रेजिडेंट की गल करते हैं तो प्रेजिडेंट बेसिकली एग्रीकल्चर मिनिस्टर होंगे ने। तो कौन ने इस टाइम? नरेंद्र सिंह तोमर एग्रीकल्चर मिनिस्टर। ठीक है जी, ये याद रख रहे हैं। इस तो इलावा फीकी के रिलेटेड आप हुणे डिस्कस करके हटे हैं। उदय शंकर का नाम याद रखांगे। उदय शंकर नवे प्रेजिडेंट अपॉइंट किए गए हैं फीकी के। IIT मंडी द्वारा की डेवलप किया गया? एक रैम डेवलप की गई सी, ये याद रखना है। हाई स्पीड मैगनैटिक रैम किन्ना द्वारा डेवलप की गई है? IIT मंडी द्वारा। इस तो इलावा अगर आप गल करते हैं IIT मंडी द्वारा हिमाचल प्रदेश के फार्मर्स के लिए भी टैक्नोलॉजी लॉन्च की गई सी। CSIR की फुल फॉर्म याद रखांगे, काउंसल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रीयल रिसर्च। काउंसल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रीयल रिसर्च इन्हों द्वारा COVID-19 के रिलेटेड कुछ लॉन्च किया गया सी। कमेंट बॉक्स के दसना। ICMR की गल करते हैं, इंडियन काउंसल ऑफ मैडिकल रिसर्च। इंडियन काउंसल ऑफ मैडिकल रिसर्च इन्हों द्वारा रिसेंटली एक कह सकते हैं बनाई गई सी। वैनस लॉन्च की गई सी, वैन डेवलप की गई सी। ठीक है, जिन्होंने इनोग्रेट किया गया सी, लॉन्च किया गया सी अमित शाह द्वारा। COVID-19 टेस्टिंग लैब्स लॉन्च की गई सी ICMR द्वारा। नेक्स्ट है विच इंडियन इज अवॉर्डेड एज एशियन ऑफ द ईयर अवार्ड। बेसिकली जो एशियन ऑफ द ईयर अवार्ड है ये टोटल 6 लोगों को दिता गया। ठीक है जी, 6 लोगों को दिता गया। उन्होंने एक सिंगल परसन इंडियन ने, तो अपने लिए इंडियन का नाम इंपोर्टेंट रहेगा। तो किन्होंने दिता गया? अदर पूनावाला। फर्स्ट ऑप्शन अदर पूनावाला कौन ने? अदर पूनावाला डिटेल इन्हों के बारे डिस्कस करते हैं। पहले सादत रहमान की अगर आप गल करते हैं तो सादत रहमान बांग्लादेश तो बिलोंग करते हैं, बांग्लादेशी बॉय सादत रहमान। और इन्हों
अवार्ड दिता गया, इन्हों केड़ा अवार्ड दिता गया, इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस प्राइज़, याद रखेंगे। एस हरीश की गल करते हैं, इन्होंने JCB प्राइज़ जितया सी, JCB प्राइज़ लिटरेचर के फील्ड के विच JCB प्राइज़ जितया सी मुश्तैक नॉवल के लिए, ठीक है जी। बाकी दो ऑप्शन रिलेटेड जो न्यूज़ है डिस्कस कर लें। आदल पूनावाला की अगर आप गल करते हैं, सब तो पहले ये CEO ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे के। अच्छा, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे तो की याद आता है कि आदल CEO जो CEO ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे के, इतने किन्ना ने विजिट की थी रिसेंटली, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 3 जगह पर विजिट की, आप डिस्कस किया, जिन्हों के एक सी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे। बाकी दो की अगर आप गल करते हैं, भारत बायोटेक सीगा जो कि हैदराबाद के विच है। इस तो इलावा तीसरी विजिट की थी अहमदाबाद के समथिंग कोई इंस्टीट्यूट सीगा जिथे विजिट की गई सी, किन्ना दे लई, कोविड-19 के लिए, कोविड-19 की वैक्सीन की डेवलपमेंट के बारे रिव्यू करने के लिए, ठीक है, ये याद रखांगे। अच्छा, इन्हों द्वारा इन्हों क्यों दिता गया अवार्ड, 6 लोगों के विच ने अवार्ड पहले तक किन्ना द्वारा दिता जाता है, सिंगापुर दे द स्ट्रेट टाइम्स द्वारा, सिंगापुर दे द स्ट्रेट टाइम्स द्वारा इस अवार्ड नूं दिता जाता है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने की कराया, ऑक्सफोर्ड यूनीवर्सिटी के नाल मिल के, ऑक्सफोर्ड यूनीवर्सिटी और बेसिकली ब्रिटेन की भी कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने नाल मिल के की किया, एक वैक्सीन डेवलप की है, कोविड शील्ड, इस करके इन्हों यह अवार्ड दिता गया। जहन दारूवाला की गल करते हैं, इन्हों का नाम इंपोर्टेंट है, ये फर्स्ट ऐसे इंडियन बने ने जिन्होंने फॉर्मूला 2 रेस जीती है शखीर ग्रैंड पिक्स के विच। आपां ग्रैंड पिक्स डिस्कस करते होंगे, फॉर्मूला 1 कार रेसिंग ग्रैंड पिक्स डिस्कस करते हैं, जिन्हों के लुइस हैमिल्टन का नाम आप काफ़ी बार डिस्कस करते हैं, मर्सिडीज के लिए ड्राइव करते हैं और ब्रिटेन तो बिलोंग करते हैं, ठीक है जी। तो सिमिलर तरीके नाल फर्स्ट इंडियन जिन्होंने फॉर्मूला 2 कार रेस जीती है जहन दारूवाला किहड़े ग्रैंड पिक्स के विच, शखीर ग्रैंड पिक्स के विच। नैक्सट है क्रिकेटर कोरे एंडरसन की अगर आप गल करते हैं तो इन्हों द्वारा रिटायरमेंट अनाउंस की गई है, गई है किहड़ी कंट्री तो बिलोंग करते हैं, ये न्यूजीलैंड तो बिलोंग करते हैं, ठीक है जी। इन्होंने रिलेटेड अगर कुछ फैक्ट की गल करिए तो फर्स्ट ODI सेंचुरी, फर्स्ट नहीं कहेंगे, फास्टेस्ट ODI सेंचुरी 1 डे इंटरनेशनल मैचिज के विच, फास्टेस्ट ODI सेंचुरी किन्ना नाम रिकॉर्ड है, कोरे एंडरसन के नाम यह रिकॉर्ड है, न्यूजीलैंड तो बिलोंग करते हैं। बेसिकली अगर गल करते हैं कुछ लास्ट 2 सालों तो ये खेड भी नहीं रहे सी, ठीक है। तो इन्हों रिटायरमेंट इस करके अनाउंस की है क्योंकि ये शिफ्टिंग कर रहे हैं, USA के शिफ्ट कर रहे हैं, और USA के लिए USA के एक ऑर्गेनाइजेशन है मेजर लीग क्रिकेट MLC, मेजर लीग क्रिकेट, उन्होंने नाल इन्होंने 3 साल की पार्टनरशिप भी की है, 3 साल की पार्टनरशिप की है, डील की है उन्होंने नाल मेजर लीग क्रिकेट के नाल, ठीक है जी। न्यूजीलैंड तो बिलोंग करते हैं और क्रिकेट तो रिटायरमेंट अनाउंस की है इन्होंने, ठीक है जी, याद रखने। नेक्स्ट चलते हैं एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट दी वल, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट रैंकिंग। अच्छा, अगर इन्हों के रिलेटेड कुछ डिस्कस करना हो तो की डिस्कस कर सकते हैं, न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर डिस्कस कर लेने जैकिंड्रा एंडर्न ने, ठीक है जी। इस तो इलावा अगर प्रियंका राधाकृष्णन का नाम इंपोर्टेंट रहेगा, ये याद रखना है, फर्स्ट कैबिनेट मिनिस्टर बने ने न्यूजीलैंड के, फर्स्ट इंडियन ओरिजिन कैबिनेट मिनिस्टर। इस तो इलावा डॉक्टर गौरव शर्मा का नाम याद रखांगे, इन्हों द्वारा संस्कृत के शपथ लीती गई है, न्यूजीलैंड के मिनिस्टर बने ने। USA के रिलेटेड आप डिस्कस कर लिया, जो बिडन का नाम याद रखना है, कमला हैरिस का नाम याद रखना है, प्रेजिडेंट और वाइस प्रेजिडेंट के तौर पर 20 जनवरी को शपथ लै रहे हैं। इस तो इलावा एक इंडियन ओरिजिन विवेक मूर्ति का नाम याद रखांगे, USA के सर्जन जनरल अपॉइंट किए गए हैं। माला अडीगा का नाम याद रखांगे, इन्हों पॉलिसी डायरैक्टर अपॉइंट किया गया जो बिडन के वाइफ जिल बिडन का, ठीक है जी। एक नाम कमेंट बॉक्स में तुसीं दसना है कि जो बिडन और कमला हैरिस दोनों की जी ओथ सैरेमनी है 20 जनवरी को ऑर्गेनाइज की जा रही है, इन्हों ऑर्गेनाइज करने के लिए किहड़े इंडियन ओरिजिन परसन को अपॉइंट किया गया, ठीक है जी। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया की गल करते हैं, ऑस्ट्रेलिया के बारे याद रखांगे, ऑस्ट्रेलिया के बारे की याद रखते हैं, मालाबार एक्सरसाइज याद रखांगे कि रिसेंटली मालाबार एक्सरसाइज ऑस्ट्रेलिया को जोड़िया गया सी,
ठीक है जी। नैक्सट है एस्पीरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स। साउथ अफ्रीका तो याद रखना है, साउथ अफ्रीका दे विच साउथ अफ्रीका से रिलेटेड कोई न्यूज़ मेरे माइंड चो स्किप कर रही है, एक न्यूज़ सी। चलो नैक्सट डिस्कस करते हैं कि एस्पीरेशनल डिस्ट्रिक्ट रैंकिंग अक्तूबर के लिए एस्पीरेशनल डिस्ट्रिक्ट रैंकिंग किन्ना दोबारा रिलीज़ की गई है, या डायरैक्ट क्वेश्चन कि एस्पीरेशनल डिस्ट्रिक्ट रैंकिंग है जी केड़ी ऑर्गेनाइजेशन इसनों रिलीज़ करती है। एस्पीरेशनल डिस्ट्रिक्ट रैंकिंग रिलीज़ करती है नीति आयोग। नीति आयोग द्वारा एस्पीरेशनल डिस्ट्रिक्ट रैंकिंग नूं जारी किया गया अक्तूबर के लिए। बेसिकली टोटल 2018 दे विच इस इनीशिएटिव नूं शुरू किया गया सी नीति आयोग द्वारा कि टोटल 112 डिस्ट्रिक्ट, सारे फैक्ट इंपोर्टेंट बनेंगे, ध्यान नाल सुनने ने कि टोटल 112 डिस्ट्रिक्ट नूं सिलैक्ट किया गया कि इन्हां 112 डिस्ट्रिक्ट जो कि काफ़ी पिछड़े हुए ने इन्हां नूं प्रमोट किया जाएगा, डेवलपमेंट की जाएगी। ठीक है, डिफरेंट प्रोजैक्ट इन्हां डिस्ट्रिक्ट्स दे विच लगाए जाएंगे। ठीक है, टोटल 112 डिस्ट्रिक्ट ने जिहड़े नीति आयोग द्वारा, तो इन्हां दे विचों टॉप किया गया, रिपोर्ट जारी की गई किहड़े डिस्ट्रिक्ट द्वारा टॉप किया गया, मामित MAMIT मामित डिस्ट्रिक्ट है मिजोरम का मामित डिस्ट्रिक्ट है जिहड़ा इस डिस्ट्रिक्ट द्वारा टॉप किया गया। ठीक है जी। दूसरे नंबर पर बिहार का डिस्ट्रिक्ट रहा बंका डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। ठीक है जी, ये याद रखांगे। इस तो इलावा अगर नीति आयोग के फैक्ट्स की गल, नीति आयोग के बारे होर इंडैक्सिस की गल करते हैं पहले कि नीति आयोग होर किहड़ा इंडैक्स जारी करता है। नीति आयोग हेल्थ इंडैक्स जारी करता है। नीति आयोग द्वारा ही कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडैक्स जारी किया जाता है। नीति आयोग द्वारा ही SDG इंडैक्स भी नीति आयोग द्वारा। इंडिया इनोवेशन इंडैक्स नीति आयोग द्वारा। गुड गवर्नेंस इंडैक्स भी नीति आयोग द्वारा ही जारी किया जाता है। 5 इंडैक्स नीति आयोग के आप डिस्कस कर ले। और 6वां किहड़ा एस्पीरेशनल डिस्ट्रिक्ट इंडैक्स किसने टॉप किया, मनीत मिजोरम ने। अच्छा, अगर हैल्थ इंडैक्स की गल करते हैं किन्ना ने टॉप किया सी, हेल्थ इंडैक्स केरला ने टॉप किया सी। कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडैक्स काफ़ी बार डिस्कस किया अपने, गुजरात ने टॉप किया सी। SDG इंडैक्स केरला ने टॉप किया सी। इंडिया इनोवेशन इंडैक्स टॉप किया सी कर्नाटका ने टॉप किया सी। गुड गवर्नेंस इंडैक्स रिसेंटली जारी किया गया सी, अगर आप गल करिए अक्तूबर या नवंबर के विच आप डिस्कस किया सी, तमिलनाडु द्वारा गुड गवर्नेंस इंडैक्स रिलीज़ टॉप किया गया सी। ठीक है जी। हाउसिंग एंड अर्बन अवेयर मिनिस्ट्री की गल करते हैं तो हरदीप सिंह पुरी लवे है, प्लस सिविल एविएशन मिनिस्ट्री है, राज्यसभा MP ने UP तो। एनवायरमेंट मिनिस्ट्री प्रकाश जावेदकर लवे है। इस तो इलावा इन्होंने लवे एनवायरमेंट तो इलावा इन्होंने लवे इंपोर्टेंट मिनिस्ट्री है इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री और हैवी इंडस्ट्रीज मिनिस्ट्री है, राज्यसभा MP ने महाराष्ट्र तो। नीति आयोग 2015 के बनाया गया सी। नीति आयोग के बारे CEO याद रखेंगे अमिताभ कांत ने। वाइस प्रेजिडेंट की गल करते हैं तो वाइस प्रेजिडेंट राजीव कुमार ने और वाइस चेयरमैन कह सकते हैं राजीव कुमार ने, और चेयरमैन की गल करते हैं तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। होम मिनिस्ट्री अमित शाह लवे है गांधीनगर गुजरात तो लोक सभा MP ने। नैक्सट है गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू सैटअप, गवर्नमेंट द्वारा अनाउंस किया गया एक एक्सपोर्ट प्रमोटिंग काउंसिल कि आयुष के लिए आयुष प्रोडक्ट्स ने जिहड़े आयुष प्रोडक्ट्स के विच की आंदा आयुर्वेदा। आयुष की अगर फुल फॉर्म की गल करते हैं तो आयुर्वेदा, योगा एंड नैचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी। आयुष की फुल फॉर्म है, आप काफ़ी बार डिस्कस किया है आयुष मिनिस्टर का नाम। तो क्वेश्चन यही है कि आयुष मिनिस्टर कौन ने, तो आयुष मिनिस्टर ने श्रीपद येसो नायक। एक्सपोर्ट प्रमोटिंग काउंसिल लॉन्च की गई है आयुष प्रोडक्ट्स के लिए। ठीक है जी। श्रीपद येसो नायक आयुष मिनिस्टर नॉर्थ गोवा तो लोक सभा MP ने। गजेंद्र सिंह शेखावत जल शक्ति मिनिस्टर जोधपुर राजस्थान तो लोक सभा MP ने। किरण रिजिजू स्पोर्ट्स मिनिस्टर अरुणाचल वेस्ट तो लोक सभा MP। जितेंद्र सिंह डोनर मिनिस्टर डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन, डोनर मिनिस्ट्री है जितेंद्र सिंह उधमपुर जम्मू एंड कश्मीर तो लोक सभा MP। और प्रकाश जावेदकर की गल करते हैं, प्रकाश जावेदकर लवे इन्वायरमेंट, प्रकाश जावेदकर के बारे आप डिस्कस कर लिया इत्थे इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री के नाल। इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री इन्ना लवे है। इस तो इलावा इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री और इस तो इलावा हैवी इंडस्ट्रीज मिनिस्ट्री होल्ड कर रहे हैं। नैक्सट है विच कंट्री
सक्सैसफुली लॉन्च अ अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट गाओफेन 14, गाओफेन 14 नाम की अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है जी, इसनू लॉन्च किया गया किन्ना द्वारा, जी कि हाई रेजोल्यूशन पिक्चर्स लै सकती है ग्राउंड ऑब्जैक्ट्स की हाई रेजोल्यूशन कह सकते हैं पिक्चर्स लै सकती है। ऐसी केड़ी सैटेलाइट है गाओफेन 14, किन्ना द्वारा, चाइना द्वारा ही इस सैटेलाइट में लॉन्च किया गया गाओफेन 14, याद रखेंगे। इस तो इलावा बाकी स्टेट्स के रिलेटेड कुछ इंपोर्टेंट न्यूज़ ने डिस्कस करते हैं। सब तो पहले जापान होस्ट करेगा 7 टीम फुटबॉल वर्ल्ड कप, 7 टीम फुटबॉल वर्ल्ड कप। इस दे बारे थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। इंटरस्टिंग न्यूज़ है कि फीफा की आप गल करते हैं, फीफा द्वारा एक तो मेन वर्ल्ड कप किया जाता है जो कि 2022 के होएगा, कतर होस्ट करेगा, ठीक है। 2026 वाला केड़ा होस्ट करेगा, 2026 होस्ट करेगा यूएसए कैनेडा और मैक्सीको, ठीक है जी। 3 कंट्रीज मिलकर होस्ट करनी हुण फीफा द्वारा ही एक 7 टीम वर्ल्ड कप, क्लब वर्ल्ड कप कहने आप उसनू, क्लब वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो क्लब वर्ल्ड कप सीगा जिहड़ा 2020 का उसनू 2021 के लिए पोस्टपोन किया गया जो कि कतर होस्ट करेगा, ठीक है। कतर इस इवेंट नू फैबररी दे विच डेट्स अनाउंस कर दी गई ने, तकरीबन 7 तो 11 फरवरी इस तरीके का कुछ है कि इन्हां दे विच ऑर्गेनाइज करेगा, ठीक है। फैबररी 2021 दे विच कतर होस्ट करेगा क्लब वर्ल्ड कप 2020 वाला 21 दे विच। इसी तरीके नाल अनाउंस किया गया है कि 2021 का जिहड़ा एडिशन है वह दिसंबर 2021 दे विच होएगा और जापान होस्ट करेगा, ठीक है। कतर 2020 एडिशन फैबररी 2021 दे विच और दिसंबर दे विच करेगा 7 टीम फुटबॉल वर्ल्ड कप जापान। इसी दे नाल एक फैक्ट होर इसी दे रिलेटेड है कि फीफा द्वारा ही अनाउंस किया गया सी कि 24 टीम जिहड़ा जिस तरीके नाल यह 7 टीम वर्ल्ड कप है, 7 टीम क्लब वर्ल्ड कप, ये 24 टीम क्लब वर्ल्ड कप भी अनाउंस किया गया सी कि इसनू चाइना होस्ट करेगा और इसनू हजे दे लई रोक लगा दी गई है कोविड-19 करके इसनू हजे लई रोकया गया है, कैंसल किया गया है और अनाउंस किया गया कि जापान 7 टीम वर्ल्ड कप होस्ट करेगा 2021 दे विच, ठीक है जी। नैक्सट है, अच्छा ये न्यूज़ आप पहले डिस्कस कर चुके हैं, दोबारा थोड़ी हाईलाइटेड रही है, इस करके दोबारा डिस्कस कर रहे हैं कि जो डिएगो मैराडोना कुछ दिन पहले आप डिस्कस किया सी, फुटबॉल के लैजेंडरी प्लेयर ने, ठीक है, अर्जेंटीना तो बिलोंग करते हैं, लियोनल मैसी के मैंटोर ने, ठीक है जी। 1984 या 1986 सीगा आई थिंक, जिस दे विच इन्हां ने फीफा वर्ल्ड कप जितया सीगा और काफ़ी अच्छा स्कोर किया सी। तो इन्हां दे नाम के उत्ते इटली का एक स्टेडियम है, इटली की नेपल्स, बेसिकली नेपल्स है, NAPLES, नेपल्स एक सिटी है, उत्थे स्टेडियम है सैन पोलो स्टेडियम का नाम डिएगो मैराडोना के नाम के उत्ते रखा जा रहा है, ठीक है, पहले डिस्कस किया हुआ। नैक्सट है 2 ट्विन मॉन्कीज़, बेसिकली ये जी न्यूज़ है, ये न्यूज़ अपन डायरैक्टली नहीं पूछी जाएगी, न्यूज़ पूछी जाएगी चेस्टर जू के बारे कि चेस्टर जू केड़ी कंट्री दे विच है, चेस्टर जू कित्थे है, यूके दे विच है, फेमस जू है और पूछा जा सकता है कि चेस्टर जू केड़ी कंट्री दे विच है, यह यूके दे विच है या कह सकते हैं इंग्लैंड दे विच है, ठीक है जी। तो इत्थे एक स्मॉलेस्ट मोंकी की स्पीसीज़ है, बेसिकली अगर आप गल करते हैं मंकी की स्पीसीज़ होंदियां ने डिफरेंट, तो उन्होंने सब तो स्मॉलेस्ट मोंकी स्पीसीज़ दे विच 2 ट्विन मोंकीज़ ने जन्म लेता है चेस्टर जू दे विच। बांग्लादेश की गल करते हैं, फर्स्ट प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट भूटान के नाल, ये इंपोर्टेंट रहेगा। प्रेफरेंशियल का मतलब की होंदा इत्थे, प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब है बॉर्डर एग्रीमेंट कि बॉर्डर के उत्ते जिहड़ी जिन्हां कंट्रीज़ नाल कोई कंट्री बॉर्डर शेयर करती है उस दे नाल प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट साइन करती है कि ट्रेड किया जाएगा, किस तरीके नाल किया जाएगा, और पर्टिकुलरली इस दे विच डिटेल्स होंदियां ने। तो किहड़ी कंट्री ने भूटान के नाल एग्रीमेंट साइन किया है, बांग्लादेश के नाल। नैक्सट है मेरा कोविड केंद्र एप्लीकेशन, कोविड के लिए एप्लीकेशन लॉन्च की गई है, मेरा कोविड केंद्र एप्लीकेशन मोबाइल एप्लीकेशन नू लॉन्च किया गया है, किहड़ी स्टेट के चीफ मिनिस्टर द्वारा, यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ की अगर आप गल करते हैं, इन्हां द्वारा मेरा कोविड केंद्र एप्लीकेशन नू लॉन्च किया गया,
ठीक है जी। इस तो इलावा अगर आप गल करते हैं बाकी स्टेट्स की, बाकी स्टेट्स रिलेटेड न्यूज़ ने डिस्कस कर लेने हैं। आंध्र प्रदेश तेलंगाना रिलेटेड न्यूज़ नहीं है, आंध्र प्रदेश रिलेटेड एक डिस्कस कर लेने हैं। रिसेंटली आंध्र प्रदेश की जिन्नी भी स्कीम्स लॉन्च की गई ने, क्वेश्चन पूछ रहे हैं आंध्र प्रदेश की जिन्नी भी स्कीम्स रिसेंटली लॉन्च की गई ने उन्होंने बारे कमेंट बॉक्स के कमेंट करना है, ठीक है। इत्थे नहीं दसना, कमेंट बॉक्स में दसना है डिटेल दे विच कि केड़ी स्कीम केड़ी स्कीम आंध्र प्रदेश के रिसेंटली 2 या 3 महीनों के लॉन्च की गई। काफ़ी स्कीम्स ने और काफ़ी अच्छे तरीके नाल रिवीजन हो जाएगी अगर तुम इसनूं कमेंट बॉक्स के लिखोगे। बाकी स्टेट के रिलेटेड न्यूज़ डिस्कस कर लेने, यूपी रिलेटेड भी 2 न्यूज़ होर ने डिस्कस करते हैं। सब तो पहले प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आगरा रेल मैट्रो प्रोजेक्ट, अगर आप गल करते हैं कल के दिन आगरा मैट्रो रेल प्रोजेक्ट का फाउंडेशन स्टोन रखा गया कंस्ट्रक्शन का, कंस्ट्रक्शन शुरू की गई है। फर्स्ट फेज ऑफ आगरा मैट्रो रेल प्रोजेक्ट, आगरा दे विच मैट्रो रेल चलाई जाएगी ताकि टूरिस्ट जिन्हें भी टूरिस्ट आते हैं, इंटरनेशनल फॉरन टूरिस्ट या फिर नैशनल टूरिस्ट, इन्हों सुविधावां पहुँचाई जा सकन। आगरा मैट्रो रेल प्रोजेक्ट, ठीक है जी। फाउंडेशन स्टोन रखा गया, कंस्ट्रक्शन शुरू की गई है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा। इस तो इलावा यूपी रिलेटेड एक होर न्यूज़ थी कि दांदूपुर रेलवे स्टेशन, यूपी का जो दांदूपुर रेलवे स्टेशन है, इसका नाम माँ भराही देवी धाम, यूपी की अगर आप गल करते हैं नाम बदलने की परंपरा काफ़ी टाइम तो चल रही है। शुरू की सी इलाहाबाद तो, इलाहाबाद का नाम प्रयागराज करके इस नाम चेंज करने की प्रथा शुरू किया इन्होंने, और उस तो बाद काफ़ी चीज़ों के नाम बदलते जा रहे हैं। तो दांदूपुर रेलवे स्टेशन का नाम, दांदूपुर रेलवे स्टेशन का नाम माँ बराही देवी धाम, माँ बराही देवी धाम के नाम रखा गया। वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी द्वारा माझेर भाट ब्रिज का नाम चेंज किया गया। माझेर हाट ब्रिज है जोड़ा ये कोलकाता के है, पहले तो याद रखांगे कित्थे है, माझेर हाट ब्रिज कोलकाता के है और इसका नाम जॉय हिंद रखा गया, ठीक है जी। टू कमैमोरेट द 125th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बर्थ एनिवर्सरी को ऑबजर्व करने के लिए यह किया गया। MP की गल करते हैं तो MP का एक डैम न्यूज़ के रहा है, डिस्कस करते हैं लोअर ओड डैम है जोड़ा, ये 2 रिवर्स ने बेसिकली केन रिवर और बेटवा रिवर ने जड़ियाँ यमुना की ट्रिब्यूटरीज ने, ये 2 रिवर्स, और इन्होंने दोनों को जोड़न का काम किया जा रहा है, इन्होंने दोनों को जोड़न का काम किया जा रहा है, केन रिवर और बेटवा रिवर, ठीक है जी। इस दे नाल सिर्फ MP ही नहीं यूपी को भी फायदा पहुँचाया जाएगा। बेसिकली यूपी के जोड़े ऐसे इलाके ने जिन्हों के अगर कुछ विलेजिज की गल करते हैं तो कुछ ऐसे विलेजिज जिन्होंने पानी की काफ़ी ज़्यादा कमी है, जोड़े विलेजिज के उत्थे तक भी पानी पहुँचाया जाएगा इस प्रोजेक्ट के नाल, ठीक है। तो यह प्रोजेक्ट न्यूज़ के रहा है क्योंकि इस प्रोजेक्ट बेसिकली काफ़ी टाइम तो इस प्रोजेक्ट को अप्रूवल नहीं दी जा रही, फाइनल अप्रूवल क्यों नहीं दी जा रही, क्योंकि इत्थे एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि अगर इसनूं बनाना है, इस प्रोजेक्ट को बनाना है तो देयर विल बी रिडक्शन ऑफ एरिया ऑफ पन्ना टाइगर रिजर्व। पन्ना टाइगर रिजर्व है जो कि MP दे विच पन्ना टाइगर रिजर्व है, इस MP का तकरीबन 10% एरिया रिड्यूस करना पएगा, इस करके इस प्रोजेक्ट के प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ठीक है। रिसेंटली इसके लिए मीटिंग की जा रही है तो इस करके ये न्यूज़ के रहे। नेक्स्ट है विच स्टेट और UT गोट इज फर्स्ट सोलर पावर प्लांट, पहला सोलर पावर प्लांट 2 मेगावाट का सोलर फोटोवोल्टिक प्लांट किहड़ी स्टेट को मिले, मिजोरम। थर्ड ऑप्शन मिजोरम। रिसेंटली आप लद्दाख के बारे भी डिस्कस किया, लद्दाख के भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट सोलर पावर प्लांट लगाया गया, ठीक है जी, वह भी याद रखना है। लद्दाख के बेसिकली ले एयरफोर्स स्टेशन के लगाया गया सी, तो इत्थे मिजोरम दे एक डिस्ट्रिक्ट है, मिजोरम के डिस्ट्रिक्ट का नाम याद रखांगे त्यूनगैल। 2 डिस्ट्रिक्ट डिस्कस किए हैं अज आपने मिजोरम के, पहला डिस्ट्रिक्ट सीगा मामित डिस्ट्रिक्ट याद रखांगे, ये भी मिजोरम का, इसने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट रैंकिंग में टॉप किया अक्तूबर की, और मिजोरम के ही तिंगियूल डिस्ट्रिक्ट के ट्वेंगवेल डिस्ट्रिक्ट की लगाया जा रहा है, सोलर पावर प्लांट लगाया जा रहा है, ठीक है जी। हालांकि यह 2 मेगावाट का है, इसी के नाल 2 होर सोलर पावर प्लांट मिजोरम के ही लगाए जा रहे हैं, ये लगा के तैयार हो चुके हैं और उन्होंने कंस्ट्रक्शन जारी है, ठीक है, जिन्हों के एक 20 मेगावाट का होएगा और दूसरा 5 मेगावाट का, ठीक है जी।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋ ਹੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਿਊਜ਼ ਨੇ, ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ 50th ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਸੈਂਚੁਰੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕੈਨਹਲਗਾਓਂ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਸੈਂਚੁਰੀ। ਕੈਨਹਲਗਾਓਂ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਸੈਂਚੁਰੀ ਨੂੰ, ਜੋ ਕਿ ਚੰਦਰਪੁਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਸੈਂਚੁਰੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ 50ਵੀਂ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਸੈਂਚੁਰੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸਮ ਦੁਬਾਰਾ ਛੇਵਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, 6th ਆਪਣਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਹੋਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਸਟੋਨ ਰੱਖਣਗੇ 10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੁਆਰਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਸਟੋਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਭੂਮੀ ਪੂਜਨ ਔਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਸਟੋਨ ਕਿਸ ਦਾ? ਨਵੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? 2022 ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ 15 ਅਗਸਤ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੀ 75th ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਹੋਏਗੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਡੇ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਇਸ ਨੂੰ ਇਨੋਗਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਸਟੋਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੁਆਰਾ 10 ਦਸੰਬਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਔਰ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਕਾਈਂਡਲੀ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ ਦ ਸੈਸ਼ਨ। ਗੁੱਡ ਬਾਏ।